Sister Diana read the last verse. जो अंतिम वचन सिस्टर डायना ने पढ़ा वो मुझे बहुत पसंद Proverbs आया. 31 last. It says, 31:31 का लास्ट the वचन. one who fears, the woman who fears God to be. वो जो स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी. So we only praise the woman who fears God. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. Bless you all the women of the church. God bless you today. I have a word for you from the Lord. और हमारे कलीसिया के जितने भी स्त्रियां हैं सबको आशीष देना चाहते हैं पास्टर. और आपके लिए प्रभु से एक वचन जो है You might have not वचन है you might आपके have लिए. not noticed this woman in the Bible. बाइबल में ये स्त्री के बारे में शायद आपने गौर नहीं किया In the होगा. New Testament, there are 26 times about the names of the women are mentioned. और नए करार में अगर आप देखेंगे कि 26 बार स्त्रियों का नाम दिया गया है. But this woman's name is only once mentioned. लेकिन ये जो स्त्री है उसका नाम केवल एक ही बार वर्णन किया And गया the है. scriptures say she is an outstanding woman. और वचन ये भी कहता है कि वो एक ऐसी स्त्री तो जो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, You know, outstanding. Not outstanding, यानी सबसे outstanding. अलग थी, सबसे अलग. सबसे अलग थी. Hallelujah. Say with me, सबसे. कहो मैं सबसे अलग हूँ. After you listen to this, you tell me this. Okay? Hallelujah. We're going to enjoy. हम एंजॉय करेंगे. Amen. Because Women's Day. क्योंकि ये औरतों का दिन है, स्त्रियों का दिन है. Very few verses talks about this woman. और थोड़े से वचन इस स्त्री के बारे में बताती है. But she had such qualities. लेकिन उसके अंदर एक ऐसे कुछ गुण थे. You know, even the tiny passage talks about her so powerfully. वो छोटा सा वाक्य भले ही है लेकिन उसके बारे में बहुत बड़ी चीजें के बताते What a हैं. characteristics that describes her quality. देखो उसके चरित्र और उसका जो गुण है उसका वर्णन कितने सुंदर रूप से किया You गया know, है. we can learn number of spiritual lessons from these two verses. देखो ये दो वचनों से वाक्यों से हम बहुत सारे आत्मिक सीख पा सकते हैं. Hallelujah. Do you know anybody, her name? क्या I know you आपके only know Deborah. Huh? You know only Anna. Anybody else? Come on. Huh? Yeah, in the New Testament, Old Testament. Okay, New Testament. Clue. Come on, church. You only know Lydia. You only know Priscilla. Anybody else? You know only Mary because once in a while she comes. Elizabeth, you know only Elizabeth. Huh? Mary Magdalene. Martha. ठीक है. But what I'm going to speak, she has a name. अभी जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वो उसका एक नाम है. Okay, clue. I'll give you gift. क्लू है कि आपको गिफ्ट मिलेगा. सोचो. The Bible says बाइबल कहता है that you, verse 1 please. पहला वचन. I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the church in Cenchrea, okay, verse 2, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you, for indeed she has been a helper of many and of myself also. Come on. ओके. रोमियो का 16 अध्याय और पहला वचन कहता है, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और क्रिंचिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं कि तुम जैसे कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किस बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है. See, Phoebe is only mentioned 2 verses about her. देखो यहाँ पे फीबे के बारे में केवल 2 ही वचन लिखे हैं. Phoebe, Hebe, Phoebe. Okay, we'll keep it Phoebe, right? Phoebe. हिंदी में फीबी कहते हैं. Okay? Are you sure? Yes. P is silent? Okay.
There are only 2 verses in the Bible dedicated to Phoebe. अभी बाइबल में 2 ही वचन है जो उसको समर्पित किया गया But in है। these 2 verses, Paul has made it a loaded of statement about her. लेकिन ये जो वचन है उसमें पौलुस ने उसके बारे में बहुत सी बातें कही है। You know, Phoebe was very good friend of Apostle Paul. देखो ये जो फीबे थी वो पौलुस प्रेरित की बहुत अच्छी दोस्त The थी, Bible मित्र says थी। she was a sister. बाइबल कहता वो इसकी एक बहन थी। You know, he called her a sister. वो उसे बहन कहता था। It's not about, hey Nancy, how are you? ऐसा नहीं नाम लेके बोलना कि हे Hey नैन्सी Shreya, तो how are you, man? हे श्रेया Hey कैसी है Sharon, तू? where are you, man? No. नहीं, There was a discipline in the church. यानी कलीसिया में एक ऐसा अनुशासन था, शिस्त था। When I go to some city pastors' meetings, they call by name, right? और कई मैं सिटी में पास्टरों की सभाओं में जाता हूँ, वहाँ पे एक दूसरे को नाम से I बुलाते feel हैं। like I'm lost somewhere out of the Bible. मुझे ऐसा लगता है कहीं तो मैं गुम हो गया, बाइबल से बाहर कहीं They निकल call गया by हूँ। name. वो एक दूसरे को नाम से बुलाते Our हैं। Apostle Paul, a हमारे- Bible scholar, हमारा प्रेरित पौलुस जो बाइबल स्कॉलर, who is a lover of Jesus, जो यीशु का प्रेमी he है, addressed a woman as a sister. वो एक बहन, वो एक औरत को, स्त्री को बहन करके उसे पुकारता है। Hallelujah. That is the church doctrine. ये है कलीसिया का शिष्ट Oh, you don't need to अनुशासन। call anybody sister. That's the new doctrine of the demons. अभी नए जो उपदेश है उसमें कहते हैं नहीं नहीं किसी को बहन या भाई बुलाने की जरूरत है, नाम से बुलाओ। I वो commend- दुष्ट आत्मा का शिक्षण है। He says, I commend to you our sister Hobe. मैं तुमसे फीबी जो फीबी, हमारी okay. बहन है। Hobe, Phoebe. Okay, I almost forget. Okay, Paul is supporting a missionary work. देखो पौलुस जो है मिशनरी काम के लिए सपोर्ट Now करते he's हैं। saying, who is a servant? Okay. वो कहता है वो एक सेविका First, है। he called her sister. पहले वो उसे एक बहन कहता है, Then he calls a servant. बाद में उसे वो कहता है वो एक सेविका है। And you know, and he promotes her work in the house of the living God. देखो जीवित परमेश्वर के घर में उसके काम को वो जो है आगे बढ़ा रहा है या उत्तेजना दे रहा है। Hallelujah. Paul was usually traveling to Rome only for business sake. खास करके पौलुस रोम में जाते थे बिजनेस या व्यापार करने के लिए। And he found her there, वहां पे उसकी मुलाकात उससे होती preaches the है gospel to her. और उसे वो सुसमाचार देता है। And Paul took the opportunity to write the church members in Rome and other churches. और पौलुस ये मौका लेता है कि रोमियो के और दूसरे मेंबर्स को ये लिखने के पत्रिका लिखने के लिए। Paul is, you know, a highly scholared man. पौलुस बहुत ही पढ़ा लिखा स्कॉलर आदमी था। He delivers a letter to the Romeo church. अभी रोमियो की कलीसिया को एक पत्रिका वो भेजता है। He make ensure that nobody will disgrace her leadership. और वो एक पत्र इस रीति से लिखता है कि कोई भी इस स्त्री का जो अगुवापन है उसका अनादर न Do करे। you know how he writes the letter to the Rome church? जानते हो रोमियो की कलीसिया को किस रीति से वो पत्रिका लिख रहा है? He mentioned like this to Priscilla and Aquila. देखो प्रिसिला और एक्विला को ऐसे कहता है। Priscilla, Aquila are the 2 other friends of Apostle Paul. प्रेरित पौलुस के ये 2 दूसरे और मित्र थे, प्रिसिला और एक्विला। And he writes to them like this. और वो ऐसा लिखता है, She is an extraordinary woman. वो कहता है कि वो औरत एक बहुत ही उपकारिणी है, She is a blessed woman. वो एक धन्य स्त्री है। Out of 26 names, देखो 26 नामों से में से her name was the first name Paul mentions. देखो सबसे पहला पौलुस उसका नाम लिखता है। What made her outstanding that Paul is so much quoting her name? देखो कौन सी वो बात है जिसके कारण पौलुस कह रहा है कि ये सबसे अलग औरत है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। Phoebe was a servant. Come back to first verse. I have not gone to second. Please. अभी पहले ही वचन में बने रहेंगे।
Phoebe, who is a servant. वो कहता है फीबी जो एक सेविका है। By helping people, she लोग- became a servant. देखो लोगों की सेवा या मदद करने के द्वारा वो क्या बनती है, एक सेविका The बन जाती very है। first word Apostle Paul uses to Phoebe, she is a. Come on, church. सबसे All the पहला women. जो शब्द पौलुस प्रेरित फीबी के बारे में बताता है, वो क्या कहता है उसके विषय में, कि वो एक बोलो ना। सेविका है या दासी है। Hallelujah. See, कलीसिया की सेविका है। That's she important. is a servant of God. वो प्रभु की एक दासी है। Phoebe was a servant of God. फीबी जो है परमेश्वर की एक दासी थी। Before you become somebody else's girlfriend or a wife, you need to understand as a woman, you are a servant of God. किसी की पत्नी या किसी की गर्लफ्रेंड या पत्नी बनने से पहले तुम्हें ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि तुम एक प्रभु की सेविका हो, दासी Hallelujah. हो। The moment you have the title, जब तुम ये शीर्षक अपनाते the हो, characters of God will come inside a woman. प्रभु की जो चरित्र है वो एक स्त्री के अंदर आती है। And this servant word, today it is translated as deacon. अभी जो ये दासी जो शब्द है या सेविका जो शब्द है उसको डीकॉन कहते हैं। There was no A word deacon. called deaconess. और डीकनेस करके ऐसा कुछ नहीं था। But because this woman took the responsibilities in the church as a servant, क्योंकि ये औरतों ने, ये स्त्री ने जो है एक जिम्मेदारी ली थी, एक सेविका की जिम्मेदारियां ली थी कलीसिया में। that's why she was called servant as a deacon. इसीलिए उसे जो है एक सेविका और एक डीकन कहा गया था। Hallelujah. Why she was a deacon? और क्यों ये उत्कृष्ट थी? Because she cared for the sick people. क्योंकि वो जो बीमार लोग थे उनकी वो चिंता करती, She ministered to the poor people. गरीबों की वो सेवा करती। She treated the strangers while passing by sharing the love of Jesus जो Christ. अनजान लोग जाते थे रास्ते में उनकी वो सेवा करती, उन्हें सुसमाचार सुनाने And के she used द्वारा। to fulfill the needs of the prisoners who have been jailed those days because of the gospel's sake. और वो लोग जो सुसमाचार के कारण बंदीगृह में थे उनकी भी वो सेवा करती। Hallelujah. The women, Phoebe, also was helping when other men of God were baptizing the people who are saved. देखो ये जो औरत फीबे थी, जो दूसरे लोग जब उद्धार पाते थे और बपतिस्मा लेते थे, उस काम में भी वो उन प्रेरितों की सहायता करती That थी। means she was a seasoned woman in the early church. यानी पहले आदि की कलीसिया में एक ऐसी स्त्री थी जो परिपक्व थी। And many children were well guided because of Phoebe. देखो ये फीबे के कारण बहुत सारे बच्चों को एक अच्छा मार्ग दिखाई दे रहा था। No wonder why Paul is appreciating her, focusing her name and writing a letter on her name to the Romans church. इसीलिए तो पौलुस उसके नाम पर ज्यादा अधिक जोर दे रहा है और उसकी सराहना वो कर रहा है, और उस पत्र में या चिट्ठी में वो ऐसे उसके विषय में लिख रहा Only है। 2 verses, but you can see lot of activities that is she's doing in the kingdom of God. देखो 2 ही वचन है, लेकिन देखते हैं कि प्रभु के राज्य के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। Only a woman with such heart can be a servant of the living God. देखो एक औरत जिसके अंदर ऐसा दिल है वही एक प्रभु की सेविका बन सकती है। She was so strong. और वो इतनी मजबूत बलवंत थी। She had a courageous faith. उसके अंदर एक विश्वास था, वो धाड़सी That's विश्वास। what Paul states in his letter. इसलिए पौलुस अपनी पत्रिका में ऐसा कहता है। Phoebe is from Caesarea. देखो फीबी जो है वो किंक्रिया से है। Kinkria, Caesarea. Okay, somewhere from some place. But Paul is very specific. लेकिन यहाँ पे पौलुस एक जो है खास रूप से बता रहे We हैं। need to understand हमें ये समझना जरूरी है। why he mentioned this city name. तो पौलुस ने ये शहर का नाम क्यों लिया? Because most of the people, they believed in different gods and were idol worshippers in Kenkria. क्योंकि केनक्रिया में लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते थे।
Yeah, they worshipped God. बहुत सारे अलग देवताओं की उपासना करते थे और अलग अलग जो चीज They have many different gods. और बहुत सारे अलग अलग उनकी देवताएं And थे, they were देवी idol देवताएं। worshippers. और वो मूर्ति पूजक थे। You know, when you walk through that city, Kenkria, देखो ये केनक्रिया की जो शहर में नगर में अगर आप चलोगे you see जाओगे, lot of different temples and shrines standing in that temples. तो वहां पे अलग अलग तरीके के मंदिरें दिखाई देती थी। There are a lot of monuments were dedicated to worship these many false gods. और वहां पे बहुत सारे ऐसी इमारतें बनाई गई थी ये जो है गलत देवताओं की उपासना करने के In लिए। a place like Caesarea or Kenkria, केनक्रिया की जगह पे you know, I want to tell you, anybody can easily fall to anything to worship and believing other idol worships. देखो कोई भी व्यक्ति आसानी से गिर सकता था और मूर्ति की उपासना कर सकता था। But this woman, she was holy, but she walked holy, she lived holy in Kenkria where the false gods were worshipped. देखो ये औरत पवित्र जन थी, प्रभु की पवित्र स्त्री थी और वो एक अपवित्र जगह पे नगर में रहते हुए भी उसने अपने आप को पवित्र ही रखा। Yet in the middle of all the religious darkness, देखो ये सारे धर्मी अंधकार के बीच में होने के बावजूद this woman believed the living God. ये औरत ने जीवित परमेश्वर पे अपना भरोसा What is her रखा। name? उसका नाम क्या है? Phoebe believed God in the midst of all the religious darkness. ये फीबे ने ये सारे अंधकार के धर्मी अंधकार के जगह पे होने के बावजूद उसने जीवित परमेश्वर पे अपना She भरोसा रखा। lived a life of faith. वो एक विश्वास का जीवन जी। She lived a life of faith and served as a servant of the living God. विश्वास का जीवन जी और वो जीवित परमेश्वर की उसने सेवा की। Phoebe, if you go to history and study, she was a wealthy woman. अगर आप इतिहास का अध्ययन करोगे आप जानोगे कि ये फीबे जो थी वो एक बहुत ही धनवंत व्यक्ति स्त्री थी। She was very rich. वो बहुत अमीर थी She is wealthy woman. और बहुत ही धनवंत थी वो। Thinking about the wealthy woman और ये धनवंत स्त्री in the midst of the darkness, religioustic world. देखो ये अंधकार की जगह पे ये धर्म से भरा हुआ जगह पर She lived a life of faith for the living God. वो जीवित No compromise. जीवित परमेश्वर के साथ में विश्वास का जीवन जी। Hallelujah. उसने कोई समझौता And नहीं you know, किया। she had another quality. और एक चरित्र था उसका। Phoebe was a selfless helper of the people. ये जो फीबे थी उसके अंदर कोई भी स्वार्थी या स्वयं की बातें नहीं थी, वो दूसरों की सेवा करने के लिए जीती थी। But that's what Paul says here, verse 2. इसलिए दूसरे वचन में पौलुस That you बोलता may है receive her in the Lord in a manner worthy of the saints and assist her in whatever business she has need of you. For indeed she has been a helper of many and of myself also. तुम जैसे कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। You know, Paul is referring Phoebe as a helper. अभी देखो यहाँ पे पौलुस बताता है कि वो एक मददगार व्यक्ति है। You know, फीबे। if you go to translate this helper, the word helper, अब मददगार अगर इसका अनुवाद करने को तुम जाओगे the accurate word for helper is patron. और एक्यूरेट जो शब्द है मददगार का है वो है पेट्रन। Patron, in English it's patron. अंग्रेजी में उसे पेट्रन कहते हैं। She was extremely a businesswoman. वो एक व्यापारी थी। Not only a businesswoman, but successful businesswoman. देखो ये केवल एक बिजनेस करने वाली या व्यापारी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही जो सफल स्त्री थी। She was greatly esteemed in her community. देखो उसके समाज में लोग उसका आदर करते थे। As a patron. एक संरक्षक के रूप में। A patron. एक संरक्षक। She was using her money to support worthy causes and missions. क्योंकि उसके पैसे को वो ऐसे ही योग्य कामों के लिए इस्तेमाल कर रही थी, दूसरों के सहायता के लिए। Today, as we say,
फिलांथ्रोपिस्ट, but she was a patron. लेकिन वो एक संरक्षक वो एक स्त्री थी. Phoebe was also one who protected foreigners and the strangers, the word of God ना says. फीबे एक ऐसी औरत थी जो अनजान लोग या अनजान. परदेसी लोग जो आते थे उनकी भी वो सेवा करती She थी. used to give them lodging and ensure that nobody should harm them when they come to business field. तो उन्हें रहने के लिए वो जगह देती थी और वो जिसमें ध्यान रखती थी कि जब वो बाहर से जब लोग आ रहे उनको पर कोई हमला न करे, वो सुरक्षित Now, रहे. what is the meaning of patrons? अभी ये पेट्रन या संरक्षक का मतलब क्या है? Patrons who took responsibilities for religious group often allowed them to worship in their home. तो ये जो पेट्रन जो शब्द है संरक्षक का मतलब है वो ऐसे लोग थे जो दूसरों की जिम्मेदारियां लेते थे Responsibility. ताकि ये जो धर्मी का जो झुंड है, धर्मी लोगों का जो झुंड है वो ताकि वो जिम्मेदारियां लेती थी. For religious groups जो धर्मी झुंड थे often allowed them to worship in their home. और जो लोगों को अपने घरों में आराधना करने के लिए वो अनुमति देती. आज बोलते हैं पास्टर मेरा घर पे नहीं दूसरे घर पे देखो ना प्रेयर. You know, but she was not like that. Wealthy woman, देखो rich woman, ये servant of the living God. वो अमीर थी, वो धनवान थी, जीवित परमेश्वर की एक सेविका थी. Even होने के in the- बावजूद फिर भी उसने ऐसा नहीं कहा मेरे घर में नहीं प्रार्थना Even नहीं चाहिए. in the midst of the religious darkness, she kept her faith for the living God. देखो ये अंधकार की जगह पे होने के बावजूद भी उसने अपने जगह अपने जीवित परमेश्वर अपना पूरा भरोसा किया. Just imagine, कल्पना करो this lady had a pretty nice home for hosting the people to worship the living God. देखो ये औरत का घर इतना सुंदर घर था कि वो दूसरों को अपने घर में रख कर मेहमान नवाजी कर सकती थी और उनको जो है प्रभु की आराधना करने के लिए भी बुला If सकती थी. Paul has to write a letter, it is not easy. अगर प्रभु पौलुस को एक चिपत्री No, no. If Paul is writing a letter about this woman, it is not easy. पौलुस अगर एक पत्रिका ऐसे चिट्ठी लिख रहा है तो कितनी साधारण बात नहीं है. Imagine, कल्पना करो she was a woman of strong integrity. यानी वो ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर बहुत सारी मजबूत ईमानदारियां थी. Imandarita, and the Christian character was inside her. मसीह का जो चरित्र होना चाहिए वो चरित्र उसके अंदर था. If someone like Paul, अगर पौलुस जैसा कोई व्यक्ति he got great influence from this woman, ये औरत से उसने इतना सारा प्रभावित वो हुआ. and he puts her name beside his name, देखो अपने नाम के बाजू में वो इस औरत का नाम लिखता है. that means we need to sit and pay attention what Paul is literally saying about this woman. यानी हमें भी बैठकर ध्यान देना है पौलुस क्या कहना चाहता है. Paul recommended Phoebe to the church in Rome without reservation. देखो रोमियो की कलीसिया को उसने फीबी का परिचय कराया बिना कोई रेकमेंडेशन के, बिना कोई हिचकिचाए. The very funny thing is, सबसे मजाकिया बात ये है he had never been to Rome, but he is recommending वो Phoebe to Rome. लेकिन वो खुद रोमियो में नहीं गया था लेकिन वो फीबे का परिचय करा रहा है रोमियो के लोगों के साथ. Hallelujah. He met the people from Rome. रोमियो के लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी. He did the missionary work in other places of Rome. रोमियो के दूसरे जगहों पर उसने मिशनरी का काम किया था. But Paul is recommending this woman, sister, to Phoebe to the Roman church. अभी रोमियो की कलीसिया के साथ में वो उसका परिचय इस बहन को फीबे को परिचय करा रहा है. Amen. It's not easy to recommend these days about this woman is good, this sister is good. Of the ये church. बहन कलीसिया की या वो बहन कलीसिया की वो अच्छी है या भली है उसके बारे में परिचय If कराना you बहुत मुश्किल want है. to be a blessing like Phoebe, you need to have the characteristics of Phoebe in your life. तो अगर तुम फीबे जैसा आशीषित होना चाहते हो तो उसके जो गुण है वैसे गुण होना जरूरी है. Paul had an enough experience with Phoebe. पौलुस का जो है फीबे के साथ में बहुत अच्छा अनुभव He was रहा. so confident in her character. That was the thing Paul was moved. देखो पौलुस जो है उसके गुण के बारे में बहुत ही निश्चय Now listen, जानता था. how do you know, Pastor? आप कैसे जानते हो पासवान? Nobody will call you simply as your sister. कोई भी तुम्हें ऐसे ही अपना बहन नहीं कहेगा. जो नाम बुलाता है ना उसके अंदर वो भावना नहीं रहता है, अलग भावना रहता है.
जो नाम लेके पुकारते हैं तुम्हें उनके अंदर कोई भावना, वो अलग ही on. भावना, लेकिन जो भाई या बहन कहते हैं एक दूसरे से वो भावनाएं अलग The होती other हैं. time somebody argued with me, no, this is in Western, this is, we are modernized, yeah, wow. कुछ समय पहले किसी ने पास्टर के साथ वाद विवाद किया था, उनके साथ वाद विवाद किया था कि नहीं हम तो अभी मॉडर्न है तो हमें नाम लेके बुलाना है. Stupid fellows, they have not even qualified like Paul to preach the gospel. पौलुस जैसे मूर्ख लोग जो है क्वालिफाइड भी नहीं सुसमाचार प्रचार करने Paul के लिए. is confident about her character, that's what he is calling her as. Verse 1. पौलुस जो है उसके चरित्र के बारे में इतना कॉन्फिडेंट है, इसलिए तो वो उसे बहन कहता है. Paul calls her his sister. Wow. पौलुस उसको बहन बोलता है. Hallelujah. That means Paul was influenced by her character. यानी पौलुस उस बहन से प्रभावित हुआ, उसके गुणों से प्रभावित हुआ था. If you know about Apostle Paul, he is a very straightforward kicking man. अगर आप प्रेरित पौलुस के बारे में जानते हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, सीधा सीधा बोलता He है. will not spare any nonsense, kidding and all those things. वो किसी भी गलत चीजों का जो है वो जो है स्वीकारेगा नहीं. Anything he स्वीकारता नहीं. straight away tells on the face. कुछ भी होगा तो वो सीधा मुंह पे बोलता. He is a very gruff man like me, right? और एक रफ आदमी था पास्टर Gruff, के gruff, जैसे. gruff. Voice is so gruff. जैसे बहुत ही आवाज, बहुत बड़ा आवाज. Hallelujah. But this guy लेकिन ये आदमी, is talking truth about Phoebe. ये फीबे के बारे में कुछ सच्चाई बता रहा है. One thing, he loved her character. एक चीज है, उससे उसका जो स्वभाव था उसे बहुत पसंद आया. Today किसी का स्वभाव पसंद आएगा तो वो मेरा बीवी होना चाहिए करके मन में आता है. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.